share the screen. Is it okay? So dear students, once again welcome back in social science class for standard 9th. So as all of you knows that currently we are discussing in our subject history, chapter number 1, the French Revolution. Okay, so just wait for a minute. I am going to start sharing the screen. Well, so is the screen visible now? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Sir. Okay, well, so this was the last section, okay, which is being highlighted. So up to here we have completed in yesterday's class, okay. Well, so in the countryside, rumors spread from that the lords of Manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. ठीक है? What does it means? In the countryside. Now, what is the meaning of countryside? Countryside मतलब देश का रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका, विलेज इलाका. ठीक है? So in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigand who were on their way to destroy the ripe crop. अब कुल मिलाकर सिर्फ इतनी बात है कि जो देश के ग्रामीण इलाके थे वहां पर र्यूमर का मतलब होता है अफवाह. र्यूमर मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूमर? अफवाह. ठीक है. सो इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी देश के जो ग्रामीण इलाके थे विलेज वाले, वहां पर ये अफवाह एक गांव से दूसरे गांव फैलना शुरू हुई कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड, ठीक है, गुंडों की एक फौज हायर की है, किराए पे, ने गुंडों को किराए पर रखा है और ये गुंडे किसानों की पकी हुई फसलों को नष्ट करने आए हैं. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized whole and attacked Shetu. Caught in a frenzy of fear. तो डर के मारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेंट्स थे, किसान जो थे, सीज्ड होज एंड पिचफॉर्क. ठीक है. तो होज और पिचफॉर्क जो हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है. खेती में काम आने वाले लोहे से बने हुए हथियार हैं. ठीक है. ठीक है. सो होज और पिचफॉर्क जो हैं, दीज आर द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ आयरन. ओके. सो बीइंग the instruments made of iron be used as a weapon also. So they attacked Shetu. Cheaux. It's what? A small fort. Shetu is in which the king or the landlord or the zamindars are living. They had a very large mansion. So in some part of the mansion, the family of the king is living. At the same time, it had a go down for the grains, and there are large number of facilities for the servants. Okay, so some soldiers were living, cooks were living. Okay, then there are rooms for the housemaid, etc. वो जो पूरा का पूरा establishment है, that is known as chateau. Now these peasants looted, hoarded grains, and burned down document containing record of manorial dues. Okay, so they looted, hoarded grains. इन लोगों ने क्या किया? जो hoarded का मतलब होता है जमा किया हुआ अनाज. ठीक है. तो जो जमींदार थे उन्होंने अपने शेटू में, किले में जो अनाज जमा करके रखा हुआ था उसको लूट लिया. बंट डाउन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया? जला दिया. विच कंटेन रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल
ड्यूज, जिसमें मैनोरल ड्यूज के क्या थे, रिकॉर्ड थे। ठीक। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। ठीक है, a large number of nobles, ठीक है, बड़ी संख्या में जो नोबेल्स थे, नोबेल्स मतलब जो जमींदार थे, ठीक है, तो जब किसानों ने इस प्रकार का विद्रोह कर दिया तो बड़ी संख्या में जो नोबेल्स थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, जो इन शैटूज में रहते थे, दे फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से भाग गए, एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, उनमें से बहुत सारे लोग पड़ोसी देशों में जा करके छुप गए। ठीक। तो सर इन फ्रांस, यस सर मैनोरियल ड्यूज मतलब? बेटा, मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है कि जमींदारों से जो कर्जा किसानों ने लिया था, ठीक है, तो उसका जो बही खाता होता है ना, हिसाब किताब की बुक। यस हेलो, यस सर। कौन बोल रहा है ये? सर धनश्री। बेटा, इफ पॉसिबल, ओके, your I required little bit louder voice from you. Well, so beta, manorial dues is basically what? If the farmers or the peasant has taken credit from the लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से कुछ उधार ले रखा है ना, तो उनका जो हिसाब किताब की पुस्तक थी, बही खाता था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, जला दिया। गॉट इट? यस सर। हाँ, now your voice is audible. Good. चलिए, so this type of situation was there in different parts of the country. Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। ठीक है, so faced with the power of his revolting subject, ठीक, जब लुई 16 ने ये देखा कि रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, तो उसने ये देखा कि उसकी जो प्रजा है ना, वो विद्रोह कर रही है और बहुत ताकत से विद्रोह कर रही है। सो लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। ठीक है, तो लुई 16 ने आखिरकार किसको एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली मतलब नेशनल असेंबली को मंजूरी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया। एस नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, आई एम ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, सो एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, है ना, उसने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि द पावर, दैट इज हिज पावर फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो किंग लुई 16 था, उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता दे दी, और इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हिज पावर वुड, यानी उसकी जो ताकत है, राजा की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक। ऑन द नाइट ऑफ 4th अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री। ठीक है, सो 4 अगस्त 1789, ठीक, विच डेट, ऑन विच डेट, 1789 4 On अगस्त which date? 1789। 4th August 4 अगस्त 1789. 1789। Okay, so on the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree। ठीक है, असेंबली ने एक डिक्री, यहां डिक्री का मतलब है आदेश, डिक्री मतलब आदेश, डिक्री मतलब आदेश। ठीक है, आदेश। तो असेंबली ने क्या किया, एक एक आदेश पास किया। ठीक है, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड, तो 4th अगस्त 1789 को
असेंबली ने एक डिक्री मतलब पास कर दिया, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, यानी के द्वारा जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था, है ना, 3 एस्टेट सिस्टम था, जो पुराना टैक्स सिस्टम था, उसका एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना, ठीक है। यानी कुल मिलाकर उस ऑर्डर के द्वारा उन्होंने उस पुराने सिस्टम को एंड कर दिया। मेंबर्स ऑफ हू वेर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, ठीक है, जो क्लर्जी मेंबर्स थे, ठीक है, दे वेर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। सो क्लर्जी के वो जो मेंबर्स थे उनको भी मजबूर कर दिया कि वो अपने प्रिविलेजेस, अपनी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी सुख सुविधाएं मिली हुई थी वो छोड़, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो जो सेकंड एस्टेट थे नोबिलिटी के सारे प्रिविलेजेस, सारी फैसिलिटीज वापस ले ली, और फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी के भी सारे प्रिविलेजेस वगैरह वापस ले लिए, ठीक है। टीथ जो है एक टैक्स को बोला जाता था, ध्यान है, Yes, sir. TITHES, सौम्या सोनी, हाँ, टी गिवन टू अ टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च। चर्च जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको टीथ बोलते थे, ठीक है। तो टीथ वॉज एबॉलिश, यानी चर्च जो टैक्स लेता था वो बंद कर दिया, एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेर कॉन्फिसिकेटेड। चर्च के पास जो एक्स्ट्रा जमीनें थी, हजारों एकड़ जमीन चर्च के पास थी, तो चर्च के पास की वो जो जमीन कॉन्फिस्केटेड मतलब अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। तो चर्च की जितनी भी जमीनें थी वो भी क्या ले ली गई, अपने कब्जे में ले ली गई, ठीक। गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन। तो चर्च की जो संपत्ति थी, चर्च की संपत्ति पर अब किसका, फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, ठीक है। चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, खेतीबाड़ी की जमीन थी, कहीं पर मकान था, गोडाउन जो भी था, उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके कारण गवर्नमेंट मतलब प्राप्त करना, तो गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन लीवर्स की क्या आई, धन संपत्ति आई। गॉट इट, यहां तक आ गया, क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. So the next topic is France becomes a constitutional monarchy, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा आ गया, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया और भी रहेगा, परंतु राजा का रूल जो है राजा की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि इसके हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। तो जब इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कि देयर इज ए पोस्ट ऑफ द किंग, किंग इज द हेड ऑफ द कंट्री, बट द कंट्री इज नॉट रूल्ड एज पर द विशेज ऑफ द किंग, इट इज बीइंग रूल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब राजा का जो शासन है वो किसके हिसाब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस कंट्री में हेड ऑफ द कंट्री किंग है, उस कंट्री में हेड ऑफ द कंट्री कौन है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, King. किंग। King. हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, King. King. किंग। बट King. बट King. but the country is administered
नॉट एज पर द विल ऑफ द किंग। में राजा रहेगा, है ना, परंतु देश का शासन राजा की मर्जी से न चल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको क्या कहते हैं? Constitutional monarchy. इतनी बात आई समझ में? वेल, असेंबली बनी did the draft of the constitution in 1791। तो वो जो नेशनल असेंबली बनी 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. यश Yes, ठाकरे, यश ठाकरे, Yes, sir. हाँ, वेयर इज हेमंत मीना? हेमंत मीना, Yes, sir. हाँ, यदि गायब हुए ना तो परसेंटेज के हिसाब से अटेंडेंस आ जाती है। चलिए, सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मेन ऑब्जेक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? टू लिमिट पावर ऑफ द मोनार्क। ठीक है, मोनार्क मतलब King. किंग, ठीक है। सो वहां का जो किंग था, किंग की पावर को लिमिट मतलब, यहां तक बात आई समझ में? तो द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। राजा की जो पावर है उसको क्या कर दिया? लिमिट। लिमिट यानी उसके पास अनलिमिटेड पावर होती थी, कम कर दी गई। ठीक है, so these concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution. These are legislature, okay, executive and powers थी। So these powers, instead of being concentrated in the hand of one person, यानी अब राज थी, वो पावर छीन करके 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए गए। What are these institution? The legislature, the executive and the, हमने स्टैंडर्ड 7th में या 8th में कहीं पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। Yes, sir. हेलो, Sir. गवर्नमेंट पढ़ा था ऑफ द ना हमने कहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पढ़ा था. तो वो जब हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाला सेक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर? 3. Okay, so what are the 3 organs of the government? Judiciary, 3 organs executive of the and government. legislature. ठीक है, so 3 organs of the government are the legislature, the executive and the judiciary। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक। Yes, sir. कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। में कौन सा सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional monarchy. ठीक, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. क्लियर संध्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, चलिए। सो गुड मॉर्निंग प्रतिभा। लटा है? Yes, sir. शुभम डल्ली,
Where is Shubham Dhali? Okay, it means that he is not present right now. Well, so in with a 7, it explain how new political system work. ठीक है, अभी एक फिगर दिया है पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू पॉलिटिकल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, का सिस्टम है, ये किस तरीके से उन्होंने फॉर्म किया, दिस इज व्हाट द सिस्टम. Okay, the political system under the Constitution of 791. This is what the political system under the Constitution of 1790. समझ में? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now पूरे को मैं आपको समझाता हूं से ये वर्कआउट हो रहा था. तो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, कंट्री की जो है, ठीक है, वो यहाँ नीचे प्रेजेंट है. इतनी बात आई समझ में? अब नीचे देखो तो यहाँ लिखा है पैसिव सिटीजन. क्या लिखा हुआ है? Passive citizen. Citizen. पैसिव सिटीजन. ठीक, अब कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 28 मिलियन. कितनी है? 28 million. 28 million. गुड. इस 28 मिलियन पॉपुलेशन में, इस 28 मिलियन पॉपुलेशन ग्रुप डिवाइड किए गए. कितने ग्रुप डिवाइड किए गए? 2 groups. How many groups were divided? 2 groups. Two group. ठीक है. Now, what are the 2 groups? Citizens and passive citizen. ठीक है. Now, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन इलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव. व्हाट आर बीइंग इलेक्टेड? Representative. रिप्रेजेंटेटिव विल बी इलेक्टेड. ठीक है. अब जब रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होने वाला था, है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कौन करेंगे? People of the सिटीजन ऑफ द country. कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री. ठीक, परंतु इस समय जो सिस्टम अपनाया, उस सिस्टम में उन्होंने पीपल ऑफ द कंट्री को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर दिया. तो पहली कैटेगरी थी विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. अब इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे. इन लोगों को क्या नहीं थे? No voting right. Voting rights. Voting rights नहीं तो थे. कोई भी वुमेन हो, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, शी इज नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट. उन्हें वोट देने की परमिशन नहीं थी. नहीं थी. Sir, ठीक है. women below Yeah. 25 or women means any type of woman. एनी वुमेन. Okay, sir. ठीक है. यूथ मतलब 25 साल से कम के जितने भी, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, किसी को वोटिंग राइट नहीं था. तो अब वोट डालने के लिए कौन बचे? मैन बचे. कौन बचे? Man. मैन. कितनी एज? 25 की एज से ऊपर. ठीक है. 25 साल से ऊपर के आदमी बचे. तो 25 साल से ऊपर के आदमियों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन. पैसिव सिटीजन में वो लोग आए जिन्हें वोटिंग राइट नहीं थे. ठीक है. अब वोटिंग राइट क्यों नहीं थे? क्योंकि इन लोगों का जो टैक्स था, ये लोग
एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा टैक्स नहीं करते थे। तो एक्टिव सिटीजन में वो लोग आए जो अमाउंट में क्या पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है, तो पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स आर वोट, ये लोग वोट डालेंगे और लगभग कितनी पॉपुलेशन थी इनकी, 4 मिलियन। कंट्री की टोटल 28 मिलियन पॉपुलेशन में 4 मिलियन लोग क्या बने, एक्टिव सिटीजन बने। 4 मिलियन क्या बने, एक्टिव सिटीजन। Citizen. यानी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए या बाकी चीजों को इलेक्ट करने के लिए वोट डालने का अधिकार 28 मिलियन पॉपुलेशन में से ओनली कितने लोगों को था, 4 मिलियन को। 4 मिलियन। इतनी बात है इसमें। अब 4 ये जो million. 4 मिलियन, ये 4 मिलियन पॉपुलेशन लेजिस्लेटिव और लेगी, और यही पॉपुलेशन किसके लिए वोट करेगी, जुडिशरी के लिए। ठीक है, जहां लिख रही है ना स्टॉप शेयर लिखा है, शेयर लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। हाँ, इसके ऊपर देखो कि दीज एक्टिव सिटीजन्स आर कास्टिंग वोट फॉर जजेस ऑल्सो। ये किसके लिए वोट कास्ट कर रहे हैं, जज। जजेस। जज के लिए। Judges. ठीक है, अब राइट में देखो, ये वोट कास्ट करेंगे। एक्टिव सिटीजन क्या कास्ट करते हैं, वोट्स। वोट। जब एक्टिव Vote. सिटीजन Votes. वोट डालेंगे तो 4 मिलियन पीपल में से 4 मिलियन पीपल वोट डाल के पहले एक हायर ग्रुप इलेक्ट करेंगे, और वो हायर ग्रुप क्या होगा, इलेक्टर्स। क्या होगा, इलेक्टर्स। Electors. इलेक्टर्स। यानी सिस्टम ये है कि 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन मिल करके 50,000, 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन मिलकर 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। अब ये जो 50,000 इलेक्टर्स हैं, ये फिर से वोटिंग करेंगे तो क्या बनेगी, नेशनल असेंबली बनेगी। क्या बनेगी, National Assembly. नेशनल असेंबली। National Assembly. अब ये जो 50,000 मैन हैं, इन 50,000 मैन में से 745 मेंबर्स इलेक्ट होंगे। यानी 50,000 इलेक्टर्स में से फिर से कितने मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, 745। 745. That means first they will elect 50,000 men, then electors, then people will elect once again for National Assembly, ना? नो, एक्टिव सिटीजन का काम खत्म हो गया इलेक्टर को इलेक्ट करने के बाद। ठीक है, Okay, sir. अब ये जो 50,000 इलेक्टर्स हैं, इन 50,000 इलेक्टर्स में से कुछ लोग कहां पर सेलेक्ट होंगे, नेशनल असेंबली में। कहां पर, National Assembly. National Assembly. National Assembly. तो नेशनल असेंबली के चुनाव में कौन खड़ा होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था, है ना, वो हम आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी अलग अलग sir. एलिजिबिलिटी थी कि कौन एक्टिव सिटीजन हो सकता है, कौन इलेक्टर के रूप में इलेक्ट हो सकता है, किसको नेशनल असेंबली के मेंबर का चुनाव खड़े होने की एलिजिबिलिटी है। तो इलेक्टर्स 50,000 थे। इन 50,000 इलेक्टर्स में से 745 क्या इलेक्ट होंगे, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, अब ये जो नेशनल असेंबली बनी, ये क्या कहलाएगी, लेजिस्लेचर। क्या कहलाएगी, Legislature. Legislature. इतना बात आया समझ में, इतना आया Yes, समझ sir. में।
Yes, Yes, sir. sir. नाउ अब इस नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? Ministers. Minister. तो जैसे ही कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। रिप्रेजेंटेटिव इज अ पार्ट ऑफ Legislature. थिंग। अब जैसे ही लेजिस्लेचर का कोई मेंबर, जैसे ही लेजिस्लेचर का कोई एक मेंबर मिनिस्टर बनता है, तो मिनिस्टर बनते ही साथ नाउ द पर्सन बिकम द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही Yes, sir. ओके, तो जैसे ही लेजिस्लेटिव का कोई एक पर्सन मिनिस्टर बना, तो वो अब किसका पार्ट हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। सो नेशनल असेंबली में से मिनिस्टर बनेंगे, तो लेजिस्लेचर मतलब नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल कर सकती है? मिनिस्टर्स को। अच्छा, किंग तो है ही है, तो नेशनल असेंबली मतलब लेजिस्लेचर किसको कंट्रोल करेगी? किंग को भी। इतनी बात आई समझ में? Sir, if they will control king, then what king will do? बेटा, कंट्रोल किंग का मतलब ये होता है कि लेजिस्लेचर ने एक कानून पास कर दिया और राजा की बहुत सारी डिसीजन मेकिंग पावर को किसके कंट्रोल में कर लिया? अपने कंट्रोल में। हाँ, तो ओनली फॉर दिस सेंस इट इज रिटन कि लेजिस्लेचर इज कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। अब किंग कैन वीटो द नेशनल असेंबली। अब वीटो का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ कंडीशंस ऐसी थी जहां पर इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द लिसन द ऑर्डर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो वीटो का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में राजा नेशनल असेंबली के आदेश को मना भी कर सकता है। समझ में आया? Okay, sir. ठीक। Yes, इसके sir. बाद में जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो और किसको इलेक्ट करेंगे? जुडिशरी को भी इलेक्ट करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. अभी ध्यान से सुनना। एक सर, एक्टिविटी आप, हाँ सर जो इलेक्टर्स है 50,000 वो एक्टिव यस, सिटीजन से इलेक्ट होते हैं, मतलब अमंग देम। हाँ हाँ, एक्चुअली एक्टिव आउट ऑफ, जैसे एक्टिव सिटीजन कितने हुए? 4 मिलियन। हाउ मेनी एक्टिव सिटीजन्स आर देयर? 4 million. Okay. Now, out of these 4 million active citizens, some of the citizens are allowed to be elected as a elector. So there is a separate qualification criteria कि out of 4 million active citizen who can contest the election to be elected as a elector. ठीक है। फिर इलेक्टर में से नेशनल असेंबली के लिए कौन खड़ा हो सकेगा, उसका क्राइटेरिया अलग है ना? तो वो क्राइटेरिया हम आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे। गॉट इट? यस सर। ओके यस सर। Yes, so sir. these criterias, all these criterias we'll discuss okay in page. ठीक है। so it is 8:36 student, so we may not be able to complete the coming section, so we are going to stop today's session here only, so that when we join the class complete the one paragraph to understand it. Okay, so that's all for, thank you, goodbye, have a nice day. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
अरे यार काम